बच्चों में पानी पकड़ेगा मुझे। हाँ हेलो, और बताओ क्या भेज दिए? मेल पे हो? क्या है इसमें? अच्छा, फॉरवर्ड कर दें पंकज अग्रवाल को। कब भेजेंगे? म्यूट करो। और फिर नहीं बात आज घर पे कॉलेज? Hello, namaste to everybody. What is the quality of my audio? Is it fine or do I need to change my headphone? Hello, please, somebody please respond.
What is the quality of my audio? Please, somebody do respond. Is it audible or not? Fine. Okay, Aviral, thank you. Okay. So this is a tutorial class. So first, I would like to take your doubts and discuss and try to solve them. So shoot your questions. If you people have something to ask or something that I've covered that your people are not able to understand, basically tutorial is designed for that. If you don't have any issues, then I will devise or design some activity. Uh, you people don't have any query to discuss or any doubts? Okay, no issues. So, okay, done. Yep. So, in last class, I have discussed with you people that what is the cost of matrix multiplication, right? So, somebody do just revise all that concept that I've explained in that class. What is the cost of matrix multiplication, right? So, anybody volunteer, please revise all those issues. Or you people forgot? Okay, no issues, nothing to worry. Basically, it was like that. If I multiply two matrices, one of A was of n cross m, and B of m cross p, right? So I told you when I multiply this A matrix with B, then what is the cost of matrix multiplication? So it was n m p, right? Right. So this, and what were the additions? N into m minus 1 into p. Done. So okay, now you people are familiar with this concept, and if you have any issues over this concept, please discuss. Because if you're not going to discuss it with me, people are not able to understand coming 3 or 4 classes. You will be getting zero out of them. So no response means everybody is comfortable, right? now, I take a question, and I would request to all of you, please have a paper and pen. So there is a matrix A whose dimension is 30 cross 1, and another matrix whose dimensions are 1 cross 40, and another matrix whose dimensions are 40 cross 10, right? And then there is another matrix D whose dimensions are
10 cross 25, right? Now, my first question to all of you is whether I can multiply these matrices or not. Is this operation allowed or not? Somebody please respond. Yeah, there is one answer from Dhruv. Allowed, yes, Dhruv. Aviral, yes. Devendra, yes, yes. Ritik, yes. Okay, okay, okay. Great. Ishan, yes, great, great. So this operation is allowed, right? There is one more, one more, one more, one more. Yes, yes. Okay. A lot of people are saying this operation is allowed. And again, the same rule we are going to follow, that keep aside all your worries, just concentrate on this problem, and this problem is considered as human intelligence problem, nothing mathematical, nothing algorithmic. So these are four matrices. I'm just asking whether I can multiply these four matrices or not, right? You people answered that I can multiply. Now ध्रुव ने कहा कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. और कोई बच्चा जिसने आंसर किया था, आशुतोष ने कहा कि हम नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. तो किसकी बात मानी जाए? कोई आंसर या सजेशन आपकी साइड से? इन साहब की बात मानी जाए या इन साहब की बात मानी जाए? अच्छा, दोनों ऑपरेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? पहला क्वेश्चन तो ये है. अगर अलाउड है तो किन साहब की बात मानी जाए? चलिए पेपर पेन ले लीजिए और कुछ मुझे सजेशन दीजिए. क्वेश्चन क्लियर हुआ मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? ध्रुव ने कहा अलाउड है. वेरी गुड, अलाउड है, मान लिया. देवेंद्र ने कहा बोथ आर अलाउड, मान लिया. ऋतिक ने कहा दोनों इक्वल हैं. ऋतिक, ध्रुव, अब यही तो बताना है जिसमें कम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, राइट? अनम्यूट करके बोलो थोड़ा, हमें भी मजा आएगा. मतलब तो क्या चैट टिक टिक टिक, अनम्यूट करके बोलो सब. अभी सब लोग जिसके पास माइक वाइक नहीं है, माइक वाइक की व्यवस्था कर लो. अभी ओरल बहुत कुछ आने वाला है. डन. तो अनम्यूट करके बोलो. ये टाइपिंग एपिंग में मजा नहीं आ रहा. चलिए कोई मुझे हेल्प करेगा कैसे, क्या क्या करना चाहिए? क्या प्रॉब्लम समझ गए ना हमारे पास क्या है? और हमारे सबके पास ब्रेन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस. अगर कोई मना करता है नहीं है तो फिर नमस्ते, बाय बाय. सबके पास है ना? तो कैसे ये वाला हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें, या क्या तो हमसे ना हो पाएगा? आप बताइए. तो उसके लिए भी हम रेडी हैं.
अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कौन लेगा? आशुतोष, आपने पहले कभी अटेंडेंस दी है मुझे? अगर नहीं दी है तो आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंक्लूडिंग मी देयर आर 16, इट मींस 15 आर प्रेजेंट, रेस्ट आर एब्सेंट। सो मुझे एब्सेंट चाहिए होता है, आप मैनेज करिएगा कैसे। डन। कोई सजेशन दीजिए, कुछ बोलिए, सही गलत का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। एक मतलब एक प्रॉब्लम हमारे सामने है कि इसको हम पजल पजल समझ लो, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। सर जिसकी कॉस्ट कम होगी वो वाला होगा। ईशान इज सेइंग जिसकी कॉस्ट कम होगी वो वाला होगा। जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम लगे। आशुतोष कह रहे हैं जिसमें, आशुतोष फिर से बोलिए बेटा, आप, मैं सुन नहीं पाया। मल्टीप्लिकेशन कम हो सर, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। आशुतोष का कहना है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम हो जाए। दोनों ही करेक्ट हैं। और कोई? सर सेम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसमें कम होंगे नंबर। ध्रुव का भी वही कहना है कि जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस कम होंगे। कोई मतलब इनके अलावा कोई सजेशन दे रहा है या बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि नहीं 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 मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा, ये सब क्या बकवास कर रहा है? कुछ मतलब डिफरेंट ओपिनियन का अगर कोई हो तो। नहीं, सब लोग मतलब एक ही धारा में बहेंगे। चलिए तो दो टर्म निकल के आए, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके देख लेते हैं। चलिए हम पहले इस वाले ऑपरेशन की बात करते हैं, इसमें ए बी, अरे भाई माउस से लिख रहे हैं, थोड़ी इज्जत रखो। सी डी, राइट। तो ए की डायमेंशन क्या थी? 30x1, और बी की डायमेंशन क्या थी? 1x40। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हिंदी में। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएंगे? 30 इंटू 1 इंटू 40। कोई मुझसे डिसएग्री कर रहा हो तो मुझे रोक दे, राइट। इसी तरह सी और डी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी? 30x40। 30x40। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ठीक है, सी और डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे? सी की डायमेंशन है 40 इंटू 10 और डी की है 10 इंटू 25। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे 40 इंटू 10 इंटू 25, राइट। एक्सेप्टेड, राइट। अब जब इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, जो सी डी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आई, इसकी डायमेंशन क्या होगी? 40 इंटू 25। तो ये जो दो नए मैट्रिक्स आई 30 इंटू 40 और 40 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये कहां से पता चला हमें? ये यहां से पता चला। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर देंगे, कहेंगे नहीं, कहीं नहीं का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन की, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 30। अरे भाई माउस से लिखना बड़ा अत्याचार है हमारे ऊपर। 30 इंटू 40 इंटू 25, राइट। वर्कआउट करके बताओ ये कितना आया? 5200। कितना आया? 5200, 5200 सब हाँ। चेक कर लो भाई, मेरा कुछ और आ रहा है ना। 41,200। 41,200। 41,200। ये 1200 आया, तुम लोग गजब है यार, मतलब गुणा भागो नहीं कर पाते हो। 1200 सर टोटल बता रहे थे। बताओ टोटल। 41,200। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस लग रहे हैं, ठीक है। किसी का कुछ डिफरेंट आया हो तो हमसे बात करें।
एक और करते हैं, ए बी सी डी राइट। इसमें सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी की डायमेंशन क्या है 1 इंटू 40, सी की क्या है 40 इंटू 10, तो 1 इंटू 40 इंटू 10 इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। ठीक, तो जो ये नई मैट्रिक्स आएगी इसकी डायमेंशन क्या होगी 1 इंटू 10, राइट। और डी की कितनी है 10 इंटू 25, डी की 10 इंटू 25, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हो जाएंगे 1 इंटू 10 इंटू 25, राइट। इसके बाद ये जो नई मैट्रिक्स आएगी इसकी डायमेंशंस हो जाएंगे 1 इंटू 25, और जो बी है इसकी है, सॉरी जो ए है इसकी ऑलरेडी 30 इंटू 1 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 इंटू 25 हुआ, बोलो हुआ कितना आया 1400। 1400। बिल्कुल सही जवाब, राइट। अब अंग्रेजों ये बताओ इसमें मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट या नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 41,200 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट 1400 या नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1400 है, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे नीचे वाले। नीचे वाला। सेकंड वन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर से रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, ये मुद्दा नहीं, एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, किस तरह से उनका एसोसिएशन लें, इस बात पे मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट डिपेंड करती है। और कंप्यूटर में सबसे टफेस्ट ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन ही कंसीडर किया जाता है। आप जब भी अपनी एल्गोरिथम में रियल लाइफ में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो मैट्रिक्स के जितने ऑपरेशन है सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वही होते हैं। डन। तो इस डिस्कशन से हमारा टेक अवे क्या है कि मतलब ठीक है मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम किस ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करें। जब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम लगेंगे तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, आप बेटर एफिशिएंसी के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, राइट। तो मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर हुआ? या कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये पेपर और पेन पे आप ये नोट करते चलें, क्योंकि ये डेटा में बार बार जरूरत पड़ेगी आने वाली क्लासेस में। ठीक है, कंफर्टेबल? यस सर। यस। सेव कर देता हूं। अच्छा, तो अगर 4 मैट्रिक्स हैं एबीसीडी तो इनके फैक्टोरियल 4 कॉम्बिनेशंस अलाउड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन की कॉस्ट निकालेंगे और उनमें से जो मिनिमम है वो लेके उसको यूज करेंगे। यही तरीका है कि कोई और तरीका है, बताओ। यही है 3 मिनिमम टोटल। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मतलब A1 ABCD को A1 A2 A3 4 बोल देता हूँ अपने मतलब कन्वीनियंस के लिए, ज्यादा लोड ना पड़े दिमाग पे। A3 A4 ऐसे बोले दे रहा हूँ। अरे यार भाई माउस बहुत बेइज्जती करा रहा है। A1 A2 A3 A4 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब A1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, मतलब A3 A4, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलाउड है,
तो हम या फिर ऐसे ले सकते हैं, दूसरा ले लो कोई, ऐसे ले लो, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलाउड है। तो हम क्या करें कि हम ये मान लो इसको जनरल टर्म में ए आई बोल दें, लास्ट वाले को ए जे बोल दें। ए आई से ए जे के बीच हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उनके बीच जो मिनिमम हो वो हमारे काम का है, ठीक है। मतलब या इसको हम ब्रेक कर लें, डिवाइड एंड काउंट कर बहुत अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं तो हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक क्या कर लेते हैं, ब्रेक ऐसे कर लेते हैं कि दो पार्ट में कर लेते हैं, एक बार ऐसे करते 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 हैं। बेसिकली हम दो पार्ट में स्प्लिट कर ले रहे हैं। एक बार स्प्लिट हम यहाँ लगाएंगे, एक बार स्प्लिट यहाँ लगाएंगे, एक बार स्प्लिट यहाँ लगाएंगे, एक बार स्प्लिट यहाँ लगाएंगे, कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे। और जहां पर भी हमारे स्प्लिट की कॉस्ट मिनिमम आएगी वो हमारा मतलब का है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब स्प्लिट लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं इसको, रेड से कोई दिक्कत तो नहीं? एम आई जे क्या था? ए आई से ए जे तक का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब देखिएगा, मिनिमम ऑफ के, भाई माउस राइटिंग, एम आई के प्लस एम के प्लस 1 जे प्लस बी आई माइनस 1 पी के पी जे। ये कोई मुझे समझा पाएगा कि मैंने क्या क्या लिख दिया, क्या क्या हो गया? ये मतलब 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ इसी को देखो मैंने क्या लिखा है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो मैंने क्या कर दिया ये। आप उधर चले जाइए। 10 मिनट में क्लास खत्म कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ हवा लगी किसी को कि ऑल ब्लोन अप? नॉर्मल आदमी को लगनी भी नहीं चाहिए, मतलब ये ध्यान रखना। अगर तुम समझ पा रहे हो तो इट्स ओवर एंड अबव। सर पी नहीं समझ में आया, पी आई -1 क्या है? नहीं, बाकी समझ गए? हाँ कुछ कुछ सर, जैसे यहाँ पे एम आई के और सर ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है, तो जो भी इसमें से मिनिमम जिसका कॉस्ट निकल रहा होगा सिर्फ हिंदी में समझने की कोशिश करो कि मतलब हमारे पास क्या था। देखो हमारे पास नहीं पता इसको, चलिए you have more than normal IQ। अगर ए आई से शुरू किया था, ए आई डॉट 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 यहाँ ए के, ठीक है। पहला स्प्लिट ये था आई से लेके के तक, ठीक है। तो दूसरा अगला क्या होगा, ए के प्लस 1 से लेके डॉट 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 ए जे तक। ये कहां से आया? हमने क्या लिखा था, ए बी सी डी को हमने क्या कर दिया था, A1 A2
A3 A4 हमने ये कर दिया था, A1 A2 A3 A4 ये कर दिया था ना, राइट। तो I से लेके K तक एक स्प्लिट है, K+1 से लेके J तक एक स्प्लिट है, ठीक। अब इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? कोई तो डायमेंशंस तो होगी ना इसकी, तो डायमेंशंस के लिए भी हमें कोई नोटेशंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो मैं आई और पी आई और पी के जर्नल्स में करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, मान लो कुछ कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी कैसे करोगे, पी के -1 2 पी के, और इसकी कैसे करेंगे हम, पी के इधर वाले की पी के टू पी के +1। अच्छा ये कैसे आया है, कोई देख पा रहा है, समझ पा रहा है? इसी से रिलेट करिएगा A1 A2 A3 A4 से। थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं बताता हूँ भी। अगर आप अपने आप एफर्ट करोगे तो जब मैं बताऊंगा आसानी से समझ में आएगा। इससे ये अच्छा अभी इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाकी लोगों को ये समझ में आ गया कि ये हमने क्या किया है। हमने एक ब्रैकेट लगाया है आई से लेके के तक, क्योंकि हमारे मैट्रिसेस आई से लेकर ए जे तक है, ठीक है। एक ब्रैकेट लगाया है बीच में के पे, तो हमने आई से के तक की कॉस्ट निकाली, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा ले, प्लस K+1 से जे तक की कॉस्ट निकाली, ठीक। और ये के बार बार बदलते रहेंगे, पहले K1 पे रखेंगे, 2 पे रखेंगे, 3 पे रखेंगे, 4 पे रखेंगे। उनमें से जो मिनिमम आएगा वो हमारे मतलब का है, MIJ एंट्री, राइट। ये बेसिक आइडिया है इसका, क्योंकि ये आप ही ने तो मुझे बताया, आपने मुझे बताया था कि अगर हम क्या करेंगे, सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे AI से लेके AJ तक, और सारी स्प्लिट की कॉस्ट कंपेयर करेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट कॉस्ट होगी हम उसी को रखेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे, राइट। सो दिस वाज द आइडिया, डन, दिस वाज द आइडिया, राइट। सो अभी इस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, केवल आप इतनी चीज पे फोकस करो। और ये मैंने बता दिया है, ये डायमेंशन से निकाला जाएगा, जो आपकी मैट्रिक्स की गिवन डायमेंशन है। कैसे निकाला जाएगा, कैसे टर्म आया, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ध्रुव तुम आगे सोच सकते हो, बाकी लोगों से मैं के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। मुझसे डिस्कस करिए, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है, मुझे लगता है कि के वाला टर्म्स मैंने कैसे लिखा है ये बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार देखिए, डिस्कस करिए, पूछिए मुझसे। हाँ जी, डिस्कस करिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
चलिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ इस इक्वेशन को लिखिए, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ ये हो क्या रहा है। राइट, AI से लेके AK तक एक स्प्लिट है, और AK+1 से लेकर एक स्प्लिट है। राइट, तो ये K तो हम अपनी चॉइस से ले रहे हैं ना, 1 पे भी ले सकते हैं, 2 पे भी ले सकते हैं, 3 पे भी ले सकते हैं, 4 पे भी ले सकते हैं, 5 पे भी ले सकते हैं, बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। राइट, जब हमने ABCD को मल्टीप्लाई किया था तो हमने यही तो डिसीजन लिया था कि उनमें से जो सबसे कम होगा वो हमारे मतलब का है, क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट सबसे कम उसी में होनी चाहिए। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हम एक ऐसी स्प्लिट डिसाइड कर रहे हैं, K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम से कम हो, तो min K, उसके बाद M कहां से कहां तक, पहला तो I से ही स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, K तक। राइट, प्लस अगला कहां से होगा, K के बाद K+1 ही तो आएगा, अंग्रेजी MK+1 इंटू J। डन, सिर्फ इतनी सी बात हो रही है, और हर चीज की कुछ कीमत होती है, तो डे 1 से हमने तुमको समझाया है। Pi-1 PK और PJ। राइट, ये कीमत मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ कैसे आ रही है, आप बाकी इस चीज पे कंसंट्रेट करिए। हाँ जी, बोलिए। भाई कुछ रिस्पांस दोगे तभी तो हम आगे कुछ बता पाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये टर्म अभी समझने को बोल रहा हूँ, ये कैसे लिखा, और ये क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम I से J तक की कॉस्ट निकाल रहे हैं। मेरे पास आवाज नहीं आ रही क्या, आप तो ठीक है। हेलो, अरे कुछ बताओ, यस नो चैट में टाइप करो, तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। यस सर। सिर्फ एक ध्रुव को ही समझ में आ रहा है, बाकी सब सो रहे हो। यस सर, आ रहा है। नहीं नहीं, आप नहीं आ रहा है तो नॉर्मल बात है, इसमें कहीं मुद्दा ही नहीं है। क्यों मुद्दा नहीं है, हम एक प्रॉब्लम का नया सलूशन डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट टेक लाइफ्स, तो जल्दी हमें नहीं समझना है और उसे प्रोसेस के थ्रू समझना है। ठीक है, तो आप डिस्कस करिए अगर आप जिसको नहीं समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, बढ़िया बात है, मतलब यस सर। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। मेरा आज का एम इतना ही था कि मैं आपको किसी तरह से ये स्प्लिट समझा पाऊं कि के कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, किसी को ये कीमत समझ में आ रही है, कीमत हमने क्या चुकाई है, या मतलब जो मैं मेरे, ये तो मेरी टर्म्स है, कॉस्ट ऑफ दिस ब्रेक, तो ये कहां से आया? नो सर। कोशिश सर करिए। हर मल्टीप्लिकेशन की सर हर मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट हो सकती है।
नहीं ट्राई मत लो ईशान, ट्राई मत लो। ये कोई मैट्रिक्स होगी, ये भी तो अगर आपने ब्रैकेट यहाँ Yes. लगाया आई से के तक, कोई मैट्रिक्स होगी ना, Yes, ये भी sir. कोई मैट्रिक्स होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट होगी, Yes, sir. ये वही हमने कीमत लिखी है। अब आई के जे कैसे रिलेट करते हो मैं तो थोड़ा हिंट देता हूँ, मैं आज नहीं समझाऊंगा सर इसको, एक next class में समझाऊंगा, लेकिन मैं हिंट देता सर हूँ। एक लिस्ट बना लेंगे नहीं उसमें। देखो ऐसे देखो, ये हाँ जी, इसकी लास्ट डायमेंशन क्या होगी, हम डायमेंशन को पी से डिनोट कर रहे हैं, लास्ट डायमेंशन पी के होगी, उससे पहले sir. वाली क्या होगी, पी के माइनस वन। ये Yes, sir. ठीक है। ठीक, मतलब ये बस तुम समझ लो, एक्स्ट्रा सुन रहे हो, अगली क्लास में समझाऊंगा। इसकी क्या डायमेंशन होगी, पी के इंटू पी के प्लस वन, पी के इंटू पी।